Hello everyone, welcome. In this video, we will see some more examples on complex number, which is MCQ based, right? In previous video, I have already solved some examples. If you have not watched that video, then go and watch it first. Now let's solve here our questions. This is our first question. If the complex number z is equals to cos theta plus I sin theta, then 1 upon z raised to n is equals to. So definitely first of all you have to write here the complex number given to you. It is cos theta plus I sin theta. So according to z raised to n, okay, means according to De Moivre's theorem, it is cos theta plus I sin theta bracket raised to n. So using De Moivre's theorem, what happens here, this n will multiply to the theta. So this will be cos n theta plus I sin n theta. So this is the value for z raised to n. And I found here 1 upon z raised to n. So whenever you write your complex number in denominator, always remember this plus sign will change into the minus sign. So actually your value for 1 upon z raised to n is then cos n theta plus minus I sin n theta. So this is your answer. So here if you see, this is your correct option. Let's solve here our second example. If z is equals to 1 plus I root 3, this is your complex number given to you and we have to find here its modulus and amplitude. So let's find. Z is given to you 1 plus I root 3. Here if we compare with x plus iy, what is your value for x? It is 1. And what is your value for y? It is root 3. So modulus is given by mod z is equals to r is equals to root x square plus y square, that is equals to 1 plus root 3 ka square 3. And if we solve this, definitely we get here answer that is 2. And so modulus is 2, right? So either your option is A or your option is D. So we have to check here amplitude. And amplitude theta, this is given by, as you all can see, these two numbers x and y, these are positive numbers. So definitely your modulus lies in first quadrant. Amplitude lies in first quadrant. Okay. And for first quadrant, we have it is tan inverse y upon x. Okay. So tan inverse y is your root 3 upon x is 1. And if you check tan inverse root 3, this is nothing but your pi by 3. Okay, so here your amplitude is pi by 3. It means your option is D here. Let's solve your next example. The complex number, okay, this is given to you and you have to write it into the x plus iy form. So definitely first of all I am going to write here this complex number minus 3 plus I in bracket 14 minus 2i. अब इसे सिंपली जैसे हम प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं दो ब्रैकेट्स का, वैसे ही सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. सो माइनस 3 से पहले से मल्टीप्लाई करो. दिस विल बी माइनस 42 प्लस 14i माइनस 6i minus this is going to be I think plus, because this is also negative and this is also negative. And here it is minus 2i square. But if you check I square is minus 1. So यहाँ पर अगर हम आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 2, राइट? तो ये माइनस 42 एंड प्लस 2, दिस विल बी माइनस 40 प्लस 14i प्लस 16i, दिस इज 20i. सो हियर इट इज योर ऑप्शन minus 40 plus 20i. Okay, let's take your next question. The complex number, okay, it is in division now. Your complex number is in division. Let's write it here first. 2 plus 3i upon 1 minus 4i. So whenever you have a complex number in division, whatever is the number in denominator, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से आप लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है. दैट इज एन एडजस्टमेंट. तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा 1 माइनस 4i स्क्वायर. 4 का भी स्क्वायर होगा यहाँ पर, 4 स्क्वायर i स्क्वायर. तो ये ब्रैकेट का प्रोडक्ट अभी सॉल्व करो. 2 से पहले मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8i
plus 3i, this is plus 12i square, but as I told you, your I square is minus 1. So what happens here, this plus will now become minus. Okay, so solve this. 2 minus 12, it is minus 10, plus 8 plus 3, it is 11i upon. Now here also this I square is minus 1, right? So what happens here? If we replace I square by minus 1, this will become plus, and 4 square, that we can write here 16. Okay, and 16 plus 1, it is what? 17. यहाँ पर डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, तो minus 10 upon 17 plus 11 upon 17i. This is the required complex number. So take it where it is, minus 10 upon 17 plus this one. The option is C here, if you take. Okay, let's solve your next question. The complex number 1 minus I bracket cube in the form of x plus i y. इसे भी हमें यही फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर हम सीधा क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 3 1 स्क्वायर i, यानी कि ओनली i प्लस 3 1 i स्क्वायर, बट i स्क्वायर तो माइनस 1 होता है, तो क्या मैं इसे माइनस 3 लिख सकती हूँ, एंड माइनस आई क्यूब इसे हम लिखेंगे यहाँ पर. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3i माइनस 3 एंड माइनस आई क्यूब. तो आई क्यूब को हम आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं. आई स्क्वायर फिर से माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा. रिमेनिंग इज ओनली आई. सो इफ यू चेक हियर, यू विल गेट माइनस 3i प्लस आई, इट इज माइनस 2i, एंड माइनस 3 प्लस 1, इट इज माइनस 2. सो माइनस 2i, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ऑप्शन बी. ओके, let's solve your next example. If z is equals to x plus I by a complex number and z bar is its complex conjugate, then what is the value for? It means we have to find this value z upon z bar. अब z आपको given है x plus I bar और z bar आपको given है x minus I bar. given यानी कि z अगर x plus I bar, तो definitely z bar इसका complex conjugate है, तो यहाँ पे माइनस आएगा. अब डिनोमिनेटर में एज आई टोल्ड यू, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कॉन्जुगेट से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर, राइट. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, बट आई स्क्वायर इज 1, सो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर, राइट. और ये x प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई, यानी कि ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2i(xy) प्लस वाई स्क्वायर, और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ अगर लिखेंगे तो ये हो गया आपका. यहाँ पर हाँ जरूरी ये है कि आई वाई का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर आई का भी स्क्वायर होगा, राइट. और जब आई का स्क्वायर होगा तो ये जो साइन है आपकी ये माइनस हो जाएगी. ओके, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy) अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और अभी अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आइदर बी और डी, एंड दिस इज प्लस 2i(xy) अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ दिस इज नॉट माइनस, दिस इज प्लस, सो डेफिनेटली योर ऑप्शन इज बी हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व, दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. x is given to you. Let me write it here. X is equals to tan h inverse 1 by 2. तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती हूँ कि tan x is equals to 1 by 2, राइट. तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो sin h 2x की है, और sin h 2x क्या होता है, in the form of tan h, it is 2 tan h x upon 1 minus tan h square x. रिमेम्बर, सर्कुलर फंक्शन अगर है तो यहाँ पे प्लस आता है, और हाइपरबोलिक फंक्शन अगर है तो यहाँ पे माइनस आता है. ओके, तो डोंट डू योर मिस्टेक व्हाइल राइटिंग अ फॉर्मूला फॉर डबल एंगल. सो दिस इज 2 into tan h x is 1 by 2 and 1 minus tan h square x, यानी कि ये हो जाएगा 1 by 4. तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया. अब डिनोमिनेटर को अगर सॉल्व करते हैं तो वो 3 by 4 होगा, यानी कि आंसर आपका है 4 by 3. So
Where is your answer? Yes, here it is. Okay, let's solve your next example. Okay, it is again for cos h 2x. अभी tan h inverse 1/2 ही है, यानी कि tan hx की वैल्यू सेम है यहाँ पर. tan hx is your 1/2 again, and you have to find this time cos h 2x in next question we are solving. So यहाँ पर भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, बट यहाँ पर cos का फंक्शन है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर 1 प्लस tan h स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan h स्क्वायर x. अगर सर्कुलर फंक्शन है तो यहाँ पे माइनस और नीचे प्लस होगा, बट अगर हाइपरबोलिक फंक्शन है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस होगा. रिमेम्बर दिस. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो ये 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, और ये 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 फिर से. तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 5/4 अपॉन ये 3/4, तो 4 कैंसिल हो गया, यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है 5/3. सो हियर इट इज योर ऑप्शन. Next question, let's solve here. The principal value of log of -5. Okay. तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को लॉगरिथम क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पता होना जरूरी. log of x plus i y, अगर हम लोगों के पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमें log फाइंड करना है तो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है log रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x. ओके, और अगर यहाँ पर सपोज बीच में यहाँ पर कोई माइनस साइन है तो यहाँ आपको माइनस साइन यूज करनी है. दैट्स इट ओनली. सो लेट्स सॉल्व दिस. नाउ योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन टू यू. इट इज log ऑफ -5. ओके, तो log -5 हमें फाइंड करना है. क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ -5 प्लस 0i. ओके, तो ये हो जाएगा आपका log अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू रूट में -5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 प्लस i tan इनवर्स 0 अपॉन 5 -5, तो ये हो जाएगा log 5 अगेन एंड प्लस i tan इनवर्स. अभी tan इनवर्स 0 अपॉन -5 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी. ये जो टर्म है ये आपकी नेगेटिव टर्म है, तो इसे आप लोग पाई माइनस tan इनवर्स 0 ऐसा लिख सकते हो. ठीक है, तो ये पाई माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन 5 होगा, क्योंकि आपका जो x है वो निगेटिव है, तो आपको ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करके सॉल्व करना है. तो ये हो जाएगा log 5 प्लस i इंटू 5. दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है. इट इज व्हाट यू आर गिवन. तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है इट इज बी, log 5 प्लस i 5. नेक्स्ट इज इफ sin अल्फा प्लस i बीटा इज इक्वल्स टू x प्लस i y, वैल्यू ऑफ दिस वन. ओके, तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है. इसे अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये है sin अल्फा प्लस i बीटा which is equals to what we can write using a formula sin alpha cos I beta plus cos alpha sin I beta which is equals to. अब यहाँ पर हमें रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन को यूज करना है. तो रिमेम्बर जो cos I थीटा होता है उसे हम cos h थीटा लिख सकते हैं, बट थीटा की जगह पर यहाँ पर है बीटा प्लस cos अल्फा को एज इट इज रखो, और जो sin I थीटा होता है उसे हम I sin h थीटा लिखते हैं. तो ये हो जाएगा I sin h बीटा, और इसे आपको कंपेयर करना है x प्लस आई वाई के साथ. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रियल पार्ट को अगर रियल पार्ट के साथ कंपेयर करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो हमें x और y की वैल्यूज मिलेंगी. ओके,
तो यहाँ पर अगर हम जो गिवन वैल्यू है उसे सॉल्व करते हैं, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन एच स्क्वायर बीटा, अगर x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं ये वाली, तो cos h स्क्वायर बीटा की टर्म कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग इज ओनली साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। प्लस y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो y की वैल्यू तो ये है, तो साइन h स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग इज ओनली cos स्क्वायर अल्फा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ओके, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है बी। इट्स ऑल योर नेक्स्ट एग्जाम्पल। Different complex numbers have different amplitude always। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा करेक्शन है, ये इसका मीनिंग ये है कि 1 प्लस आई आप लिखो, 1 माइनस आई आप लिखो, -1 प्लस आई आप लिखो, या फिर इसे -1 माइनस आई लिखो। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर x और y की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव हो रही है, बाकी 1 ही है, राइट। तो इनके जो मॉड्यूलस होंगे वो सेम होंगे इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, बट इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो योर ऑप्शन इज बी हियर। नाउ द वैल्यू ऑफ log, ओके, दिस इज log 3 माइनस आई अपॉन 3 प्लस आई। तो यहाँ पर पहले हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 माइनस आई माइनस log ऑफ 3 प्लस आई। तो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला यूज करो। तो लॉग का फॉर्मूला क्या है बताओ? यस, इट इज लॉग रूट 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 1 ये 10 हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आएगा, tan इनवर्स दिस इज 1/3, और ये माइनस एम्पलीट्यूड फिर से यहाँ पर सेम होगा क्योंकि वैल्यूज 3 and 1 ही है, एंड हियर इट इज प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3। ओके, सॉरी, ये प्लस ही है, बट ये माइनस साइन से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि आपकी ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। आप अगर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हो और ये दोनों की एडिशन वहां पे होगी, विच इज आई, यू हैव टू राइट हियर डेफिनेटली 2i, विच इज नेगेटिव 2i tan इनवर्स 1/3। ओके, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये 2i tan इनवर्स 1/3 आया है ना, तो इन्होंने यहाँ पर इसे फिर से मॉडिफाई किया है। ये जो 1/3 है इसे न्यूमरेटर में लिखना है, तो जब हमें इसे न्यूमरेटर में लिखना होता है तो हम इसे π/2 माइनस tan इनवर्स 3 ऐसे लिख सकते हैं। और अभी अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे -i इंटू पाई माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 3, यहाँ पर 2i से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है ए ही। समझ में आया ए ऑप्शन कैसे आया फिर यहाँ पर? ओके, आप लोगों को ये कन्वर्जन पता होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में लिखनी है तो हमें उसे π/2 माइनस tan इनवर्स 3 लिखना होता है। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दैट इज अवर 43 नंबर एग्जांपल। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ i रेज टू i। ओके, तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है i रेज टू i, इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमें इसे log यूज करना है, ठीक है। बट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू i रेज टू i है, और अगर हम यहाँ पर इसे log यूज करते हैं यानी कि हम यहाँ पर z को log यूज करते हैं, राइट। बट एक्चुअली हमें जो वैल्यू निकालनी है वो z के लिए निकालनी है। सो रिमेंबर आफ्टर finding these values we have to replace again this log. Now using the property of logarithm I can write this is log I equals to log z। तो log I को हम अगर वो वाली डेफिनेशन यूज करें लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसके हिसाब से यहाँ पर x 0 है y 1 है, तो 0 + 1
यानी 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो 0 प्लस 1 इज 1 है, log 1 हो जाएगा यहाँ पे। और ये प्लस आई tan इनवर्स y यहाँ पर 1 है और x यहाँ पर 0 है, इक्वल्स टू log z। और log 1 0 होता है, हम सबको पता है, i इंटू आई स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1/0 इंफिनिटी होता है, tan इनवर्स इंफिनिटी इट इज π/2 होगा, विच इज इक्वल्स टू log 2। और यहाँ पर ये log अगर z है नॉट 2, और यहाँ पर अगर है log हमें रिमूव करना है तो z इक्वल टू हमें इसे एक्सपोनेंशियल e टू द पावर -π/2 लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक ही टर्म है जो कि रियल टर्म है, तो यहाँ पर इसका रियल पार्ट ये होगा। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड। एंड इमेजिनरी पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो डेफिनेटली उसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 0 होगा। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दैट इज अवर 45 क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ साइन एच आई वाई, लेट मी टेल यू, अगर साइन आई थीटा होता है तो आप लोग उसे आई साइन एच थीटा लिखते हो, बट अगर साइन एच आई थीटा होता है तो आपको उसे आई साइन थीटा लिखना है। एंड कॉस आई थीटा के लिए उसे आपको कॉस एच थीटा लिखना है, और cos h I theta के लिए वो सिर्फ cos theta होगा। Okay, so using this concept you can write sin h I y is I sin y, then cos h I y it is cos y only, and now here you have to use definitely De Morgan's theorem। तो De Morgan's theorem के हिसाब से ये जो पावर में 3 है वो इसके थीटा में जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, तो ये cos 15x प्लस आई साइन 15x, यानी कि इमेजिनरी पार्ट इसका होगा sin 15x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर अगेन हियर यूजिंग डी मॉर्गेज थ्योरम, डेफिनेटली हियर इट इज माइनस, सो आई साइन माइनस साइन 10x हो जाएगा। ओके, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ cos z बार इज, अब ये z बार के लिए पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अगर z आपका x प्लस आई वाई है तो z बार आपका x माइनस आई वाई होगा, और cos ऑफ x माइनस आई वाई की आप लोगों को यहाँ पर ये वैल्यू पूछ रहा है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो cos a माइनस b हम लोग लिखते हैं cos a cos b, cos a यानी कि cos x माइनस cos आई वाई प्लस sin x sin आई वाई, तो ये हो जाएगा cos x cos h y प्लस i sin x sin h y, तो ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट और ये हो गया आपका रियल पार्ट। तो यहाँ पर पहले इमेजिनरी पार्ट पूछा है, यहाँ पर आप देख सकते हो sin x sin h y, और रियल पार्ट आप लोगों को पूछा है इट इज cos x cos h y। ओके, नेक्स्ट रियल पार्ट ऑफ sin z बार दे आर आस्किंग यू, so sin z bar again it is sin x minus i bar, तो sin z bar यहाँ पर हम लिखेंगे sin x cos i bar, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखती हूँ cos h y माइनस cos x sin i bar, तो ये होगा i sin h y। तो यहाँ पर देखो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है और ये रियल पार्ट है, तो सबसे पहले हमें रियल पार्ट लिखना है इसका, तो sin x cos h y, ये है इसका sin x cos h y, एंड इमेजिनरी पार्ट माइनस cos x sin h y है। ओके, तो इमेजिनरी पार्ट उन्होंने पूछा है ही नहीं। ओके, लेट्स सॉल्व हियर नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर z वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो e टू द पावर z यानी कि x प्लस आई वाई, इसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर आई वाई, और यहाँ पर हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं e टू द पावर आई थीटा का, तो ये हो जाएगा cos y प्लस आई साइन y, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई करें तो ये e टू द पावर x cos y प्लस e टू द पावर x sin y। ओके, तो ये है आपका रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो पूछा है वो रियल पार्ट है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो e टू द पावर x cos y इज योर रियल पार्ट, एंड अभी यहाँ पर ये e टू द पावर z बार है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस होगा, तो ये निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये भी निगेटिव होगा, राइट। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा माइनस e टू द पावर x sin y।
So this is your imaginary part. Hope you all understood. Okay. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर जो गिवन है e to the power i z है, यानी कि पहले उसे i से मल्टीप्लाई करो, राइट? तो ये e to the power i x माइनस हो जाएगा क्योंकि i स्क्वायर -1 होता है, राइट? तो ये e to the power -y और e to the power i x और e to the power -y, e to the power i x को फिर से हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos x प्लस i sin y। तो यहाँ पर हम लोगों को इसका जो रियल पार्ट है वो मिलेगा e to the power -y cos x, you can check it, and imaginary part e to the power -y sin x है ये, not y, this is okay। तो सिमिलरली ये वाला आप लोग एज अ होमवर्क सॉल्व कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। ये z बार होने की वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जब आप i से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा वहां पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इमेजिनरी पार्ट और इसका ये रियल पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। द वैल्यू ऑफ tan h इनवर्स 1/2। अभी tan h इनवर्स 1/2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि हम लोगों के पास हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए कुछ फॉर्मूलेज है, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। दिस इज 1 + x अपॉन 1 - x। ओके, अभी हम लोगों को जो वैल्यू फाइंड करनी है वो tan h इनवर्स 1/2 है। तो आप लोग यहाँ पर x की वैल्यू को 1/2 से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 1 + 1/2 से सॉल्व करो, सॉरी, तो ये क्या होगा बता, इज इट 3/2 अपॉन 2 - 1 इट इज अगेन 1/2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 3/2 होगा। ओके, बट आई थिंक आई फॉरगॉट टू राइट हियर समथिंग, दिस इज व्हाट, लॉग। ओके, तो यहाँ पे आपको लॉग लिखना जरूरी है। लेट मी डू द करेक्शन इन अवर आंसर, इट इज 1/2 log 3। तो 1/2 log 3, तो इसे फिर से इन्होंने आगे सॉल्व करके लिखा है। तो लॉग की प्रॉपर्टी अगर यूज करते हो तो ये इसके फॉर्म में चला जाएगा, एनीथिंग रेज़ टू 1/2, तो ये रूट में होता है। ओके, तो ये है इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो इन्होंने पूछा है Z1 and Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड। अब ये भी एक फॉर्मूला है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्रोडक्ट में है तो इसका एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2 ये आंसर होता है, यानी कि एडिशन ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ tan h इनवर्स 1/3। यहाँ पर फिर से हमें ये सॉल्व करना है फॉर्मूला यूज करके। तो पहले यहाँ पर tan h इनवर्स x का फॉर्मूला लिख लेती हूँ, 1/2 इट इज log ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x। ओके, और अभी यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो tan h इनवर्स 1/3 है। तो ये हो जाएगा log 1 + 1/3 अपॉन 1 - 1/3, राइट, विच इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ 1 + 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 4/3 अपॉन 2/3। तो दिस इज 1/2 log 3 तो कैंसिल हो गया, ये 2 हो जाएगा। ओके, और फिर से इन्होंने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करके ये जो 1/2 है इसकी पावर में भेज दिया, तो ये हो जाएगा log √2। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन सी। सो आई होप कि अब तक जो भी एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लिए आपको समझ में आए। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज click on the bell icon to get the notification for next video. Thank you for watching this video.